محترم ناظرین آداب، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں اور جس حالت میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، آرام میں ہو یا تکلیف میں، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقویٰ تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آغاز کرنے سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد انچارج و رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بن عبداللہ بلالہ کی ضلع کو آمد۔ مختلف منڈلز میں سالار ملت اسٹڈی مٹیریل کی گئی تقسیم۔ ان کے ہاتھوں BRS کے کئی قائدین نے کی مجلس میں شمولیت حاصل۔ داؤس میں منعقد ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم میں تلنگانہ حکومت نے تاریخ رقم کی۔ گزشتہ کبھی نہ ہونے کی طرح اس بار 1.32 لاکھ کروڑ سرمایہ کاری کو تلنگانہ CM ریونت ریڈی نے کیا حاصل۔ متحدہ ضلع نظام آباد میں نیتا جی سبھاش چندر بوس کی جینتی تقاریب کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ شہر کے سبھاش ہیلتھ جم میں منعقدہ جینتی تقاریب میں سابقہ نوڈا چیئرمین جاماکورا پربھاکر ریڈی نے کی شرکت۔ وہ معروف سینئر ایڈوکیٹ پی سدانند ریڈی اب نہیں رہے۔ 50 سالوں سے زائد قانونی خدمات انجام دینے والے سدانند ریڈی کا دیہانت ہونا کافی تکلیف دہ مرحلہ ہونے کا اظہار کیا۔ بار ایسوسی ایشن اراکین طبی عملہ ریڈی سنگم اراکین نے پیش کی گلہائے عقیدت۔ شہر نظام آباد میں طوفانی دورہ کرتے ہوئے اربن MLA دھنپال سوریہ نارائنا گپتا و امید نیتو کرن شہر میں مختلف ترقیاتی کاموں کا رکھا سنگ بنیاد۔ پرجا پالنا گرام سبھا کی تفصیلات کو فل فور آن لائن میں درج کرے۔ بودھن منڈل میں واقع بنڈار پلی دیہات میں گرام سبھا کے طریقہ کار کا کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنٹو نے مشاہدہ کرتے ہوئے کیا اطمینان کا اظہار۔ بے قابو بس ہوئی، کھیتوں میں داخل، کئی افراد زخمی، محکمہ پولیس کی جانب سے کیا گیا تحقیقات کا آغاز۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مسلم طلباء کی تعلیمی پسماندگی کو ختم کرنا مجلس کا مقصد، سیاسی شعور ضروری، بے باک بے خوف انداز میں آگے بڑھنے کی ضرورت۔ احمد بن عبداللہ بلالہ کے ہاتھوں نظام آباد میں سالار ملت آل ان ون ماڈل پیپر گائیڈز کی تقسیم۔ احمد بن عبداللہ بلالہ رکن اسمبلی ملک پیٹ و انچارج نظام آباد مجلس اتحاد المسلمین نے مسلم طلباء و طالبات کو مشورہ دیا کہ وہ تعلیمی میدان میں سخت محنت کے ذریعے بے باک بے خوف ہو کر آگے بڑھے اور کامیابی حاصل کرے۔ ملک اور مسلمانوں کا مستقبل طلباء کے کندھوں پر ہے۔ احمد بلالہ نے آج بلو ڈائمنڈ فنکشن ہال میں سالار ملت آل ان ون ماڈل پیپر گائیڈ کی ہائی اسکول میں زیر تعلیم 10ویں جماعت کے اردو میڈیم طلباء و طالبات میں تقسیم کی۔ انہوں نے طلباء کو مشورہ دیا کہ تعلیم کے حصول کے ذریعے ملک کا مستقبل روشن کرے۔ احمد بن عبداللہ بلالہ نے کہا کہ سالار ملت نے اردو میڈیم طلباء کی تعلیمی مدد کے مقصد سے 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے سالار ملت آل ان ون ماڈل پیپر گائیڈ کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ہر سال مجلس کی جانب سے گائیڈ کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک میں ملت و قوم کے مسائل پر بے باک آواز اٹھانے والی جماعت صرف مجلس اور صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی و حبیب
ملت و فلور لیڈر مجلس اکبر الدین اویسی ہے۔ انہوں نے طلباء میں سیاسی شعور بیدار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر شکیل احمد فاضل صدر ٹاؤن مجلس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سالار ملت نے تعلیم کے لیے ملت کے طلباء کو آگے بڑھانے کا جو خواب دیکھا تھا، اس کو آج بیرسٹر اسد الدین اویسی اکبر الدین اویسی کر رہے ہیں۔ محمد ادریس خان ڈپٹی میئر نظام آباد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا ہی مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد ہے۔ اس پروگرام میں محمد فیاض الدین صدر ضلع مجلس نظام آباد، میر مجاز علی سابقہ ڈپٹی میئر، رفعت محمد خان سینئر مجلسی قائد، شہباز معتمد ٹاؤن مجلس و کوآپشن ممبر، مجلسی کارپوریٹرز عبدالغفور مقیم، محمد ریاض احمد، اعجاز حسین، عبدالعلی باغبان، محمد منور علی، عبدالسلیم، محمد مستحسین، ارشد پاشا کوآپشن ممبر، انچارج مجلسی کارپوریٹر سرفراز محمد خان، سید رفیع الدین کے علاوہ ایم اے عظیم بابا، محمد اویس احمد، عمر فاروق، سید خلیل، محمد وسیم، محمد مشتاق، ایم اے عزیز راہی، شیخ لائق، ڈویژن 53 کے علاوہ کثیر تعداد میں مجلسی قائدین و کارکنان موجود تھے۔ ذمہ داران ہیں، کارپوریٹرز ہیں، تھوڑے دنوں میں سابقہ کارپوریٹر بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر الیکشن ہے گا، پھر عالم مند بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بڑے متبرک کام سے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو چندہ مجلس اتحاد المسلمین جمع کرتی ہے، اس میں سے آپ لوگوں کو تعلیم میں بہتر آپ کا تعلیمی معیار ہو، اس کے لیے ٹیچنگ میٹیریل بناتی ہے۔ تمام چیزوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کے مستقبل کے پیش نظر یہ محنت کر یہ آل ان ون بک بنائی گئی ہے۔ تو میری آپ تمام سے یہی گزارش ہے کہ اس کا مطالعہ کریے، اچھے سے مطالعہ کریے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں ایک بھی آپ کو سوال اس بک سے ہٹ کے نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ بک اگر پورے سبجیکٹس کے اگر سے آپ اچھے سے مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو بہتر نشانات سے کامیابی حاصل ہوگی۔ نوڈا چیئرمین کیشو وینو کے ہاتھوں ڈویژن نمبر 13 میں 10 لاکھ روپے فنڈ سے سی سی روڈ کے تعمیری کاموں کا افتتاح۔ ڈویژن نمبر 13 کو مثالی ڈویژن میں تبدیل کیا جائے گا۔ کارپوریٹر و پی سی بی ڈائریکٹر ہارون خان کا بیان۔ شہر کے ڈویژن نمبر 13 میں متعلقہ کانگریس کارپوریٹر پی سی بی ڈائریکٹر ہارون خان کی نگرانی میں 10 لاکھ روپے فنڈ سے سی سی روڈ کے تعمیری کاموں کا مہمان خصوصی نوڈا چیئرمین کیشو وینو کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ اس افتتاحی تقریب کے موقع پر نوڈا چیئرمین کیشو وینو نے کہا کہ تلنگانہ ریاستی حکومت و چیف منسٹر ریونت ریڈی نظام آباد کی ترقی اور اسے ترقی یافتہ شہروں میں شمار کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ کارپوریٹر ہارون خان نے کہا کہ ڈویژن نمبر 13 کو مثالی ڈویژن کا درجہ دلانے کے لیے ابھی تک ڈویژن میں 12 کروڑ بجٹ سے ترقیاتی اقدامات و منصوبوں کو پورا کیا گیا اور دیگر ترقیاتی کاموں کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژن کی مزید ترقی کے لیے 10 لاکھ روپے فنڈ سے سی سی روڈ کے تعمیری کاموں کا افتتاح کیا گیا۔ ہارون خان نے کہا کہ ان کی میعاد میں ڈویژن کی ترقی کے لیے سینکڑوں ترقیاتی اقدامات و منصوبوں کو روبے عمل میں لایا گیا۔ ہارون خان نے کہا کہ ڈویژن نمبر 13 کی عوام نے ان کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے عوامی خدمات کا موقع دیا تھا۔ وہ ڈویژن کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں دوبارہ ڈویژن نمبر 13 کی عوام انہیں نمائندگی کا موقع دیتے ہوئے بھاری اکثریت سے کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں تو وہ وعدہ کرتے ہیں کہ نظام آباد میں ڈویژن نمبر 13 کو مثالی ڈویژن کا درجہ دلوانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ اس افتتاحی تقریب کے موقع پر سینئر لیڈر بی آر ایس ڈنڈو شیکھر، سابقہ صدر وقف بورڈ نظام آباد و ضلع انچارج کانگریس پرچار کمیٹی محمد جاوید اکرم، سابقہ ڈپٹی میئر ایم اے فہیم، کارپوریٹر اکبر حسین، بلاک صدر کانگریس عبود بن حمدان، شیخ جعفر، ظفر احمد، عبدالقدیر، یوتھ لیڈر کانگریس محمد عمران، اراکین محلہ عبدالوہاب، محمد مصطفیٰ، شیخ پاشا و دیگر موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ڈویژن نمبر 13 14 فائنانس کے تحت 10 لاکھ روپے کی سی سی روڈ کا اناگریشن ہوا ہے۔ انشاءاللہ اسی کوشش سے اور 1 کروڑ روپے آئے سو ہے ہمارے ڈویژن نمبر 13 کے لیے، وہ بھی جلد سے جلد اناگریشن کریں گے۔ ابھی تک 5 سال کی میعاد میں 12 کروڑ کے اوپر یہ وارڈ میں ڈیولپمنٹ کیا ہوں۔ 1 کروڑ روپے سے پانی کی پائپ لائن اور 50 لاکھ روپے کی لاگت سے کھمبے وغیرہ ڈال کے 12 کروڑ کے اوپر میں کام کیا ہوں۔ انشاءاللہ آگے بھی کروں گا۔ محلے والوں کا خاص طور پہ شکریہ جنہوں نے مجھے یہ 5 سال کا موقع دیا ہے۔ نوڈا چیئرمین صاحب کو ایک فریاد کر رہا ہوں کہ جو لائٹاں کے جو ٹاور رہتا ہے تو نوڈا چیئرمین صاحب بولے ٹھیک ہے دیں گے۔ ایک یہاں دھرماپوری اپنے آمینہ بلخیس کے پاس جو 5 لائٹ کا ٹاور آتا اور ایک جیسے گودام چورستے پہ صاحب تیقن دیے کہ جلد سے جلد کرائیں گے بول کے ان کا اسی لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔
रंजल मंडल कंदा कुर्ती में प्रजा पालना ग्राम सभा का किया गया इनेकाद। आज बरोज़े चारशंबा बतारीख 22 जनवरी को कंदा कुर्ती मंडल रंजल में प्रजा पालना का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सेक्रेटरी साहब ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स के लिए चंद दिन पहले ऐलान जारी किया था, जिसके तहत नए राशन कार्ड्स जारी किए गए और जिन लोगों को राशन कार्ड अभी तक नहीं मिले और जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया वो लोग दरख्वास्तें दे, जल्द ही इनके भी कार्ड्स जारी किए जाएंगे। इस मौके पर MDO मोहम्मद रफी साहब, जूनियर असिस्टेंट गौतम, AEO एग्रीकल्चर ऑफिसर, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी भास्कर, ग्राम पंचायत कारोबारी साजिद बेग, कलीम साहब, साबिका सरपंच गयासुद्दीन साहब कांग्रेस लीडर, फुरखान उद्दीन कांग्रेस यूथ लीडर, लुकमान बेग कांग्रेस यूथ लीडर, मिर्जा सिराज बेग यूथ मेंबर, मिर्जा अवैस बेग मेंबर और इंद्रमा हाउस कमेटी के तमाम मेंबरान, सोसाइटी चेयरमैन इमरान बेग, साबिका MPTC मिर्जा असद बेग और दीगर अहबाब भी शरीक थे। दरगाह हजरत सैयद सादुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना टेंडर रवा साल 4 करोड़ 72 लाख रुपये में किया गया हवाले। बांसवाड़ा हलके की दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद सादुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का टेंडर 4 करोड़ 72 लाख रुपयों में किया गया था, जिसके तहत रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन व CEO ने बड़ा पहाड़ दरगाह के गुत्तेदारों अजीज और असीम को चार्जशीट हवाले की। इस जिम्मन में बतारीख 22 जनवरी बरोज़े चारशंबा रात 1 बजे के दरमियान बड़ा पहाड़ दरगाह हजरत सैयद सादुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पर गुत्तेदारों ने चादर गुल पेश की और फातिहा ख़वानी के बाद अपना जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मुकामी मुजावरों, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों के अलावा दीगर हजरात मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल की तरह रवा साल भी जमात दहुम तुलबा के लिए स्टडी मटेरियल्स की फराहमी कुमराम भीम आसिफाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MLC रहमत बेग के हाथों तुलबा में की गई स्टडी मटेरियल्स की तकसीम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर AIMIM MLC हैदराबाद जनाब मिर्जा रहमत बेग साहब ने गवर्नमेंट RB हाई स्कूल में उर्दू मीडियम में इस्तेसित तुलबा के लिए सालारे मिल्लत मुफ्त तमाम किताबों की तकसीम अमल में लाई। इनके साथ AIMIM कागज नगर टाउन के सदर अब्दुल मुबीन, जनरल सेक्रेटरी जावेद, मिलनास ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद आबिद खादरी, मोहम्मद नियाजुद्दीन मोहम्मद, प्रोग्राम में अफजल मैम, मोहम्मद नईम अमीन, सैयद सादिक असगर और फाल मेमरान अमार सईद, वाजिद खान, अहमद पाशा और दीगर ने शिरकत की। दरपल्ली मंडल के इंदिरा नगर टांडा में आज प्रजा पालना ग्राम सभा का किया गया इनेकाद। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर इंदिरा नगर टांडा में आज प्रजा पालना ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में अहदेदारान की जानिब से इंदिरमा आत्मीय भरोसा, रायतू भरोसा, नए राशन कार्ड, इंदिरमा घरों के अहले मुस्तहिकीन के नामों का ऐलान करने के साथ साथ दरख्वास्तें दाखिल करने वालों को मुंतखब किए जाने वालों के नामों को भी जलसे आम में पढ़ते हुए अवाम को वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर टांडा के अवाम ने ग्राम सभा में मुस्तहिकीन का इंतखाब एक तरफा करने का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। ताहम स्पेशल ऑफिसर ने इसका जवाब देते हुए तमाम नामों का जायजा लेने के ताल्लुक से कहते हुए किसी को भी परेशान न होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPDO बालाकृष्णा, स्पेशल ऑफिसर बालाजी, सेक्रेटरी चंद्रकला, RI राजेश्वर, सेक्रेटरी भास्कर, APM सुनीता, जमुना, गोपीचंद, सोसाइटी डायरेक्टर नौसीलाल, तुलसीराम के अलावा दीगर ने शिरकत की। सीनियर एडवोकेट P सदानंद रेड्डी के देहांत पर बार एसोसिएशन ने पेश की इजहार तासियत। निजामाबाद बार एसोसिएशन सीनियर एडवोकेट P सदानंद रेड्डी का आज देहांत हो गया। मरहूम जो कि आरमूर मंडल ईसापल्ली देहात से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने उस्मानिया से ग्रेजुएशन करते हुए मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर नाम दर्ज करवाते हुए जिला निजामाबाद कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर 50 साल से जायद प्रैक्टिस की। इनकी अचानक देहांत पर निजामाबाद बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इजहार ताज़ियत इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बार सदर M जगन मोहन गौड़ ने कहा कि तवील अरसे तक एडवोकेट की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए श्री राम सागर प्रोजेक्ट के सैलाब ज़दा देहातों के किसानों के लिए अदालत में मुख्तलिफ सिविल दावा दायर करते हुए फतेह हासिल करने का इजहार किया। वो इनकी देहांत पर 2 मिनट तक की खामोशी इख्तियार करते हुए श्रद्धांजलि पेश की गई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर इनेकाद अमल में लाए गए ग्राम सभा पर अवाम ने बरहमी जताई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर खुसूसी ओहदेदार MPDO विजया भास्कर रेड्डी की सदारत में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नाफिज किए जाने वाले फलाई स्कीमात के बारे में बताते हुए मुख्तलिफ स्कीमात में अहल होने वालों के नामों को पढ़कर सुनाया। तब ये स्कीमात अहल अफराद के बगैर नाअहल को दिए जाने पर अवाम ने बरहमी जताई और इजलास के इनेकाद अमल में लाने के खिलाफ एहतजाज किया। इस इजलास में हुक्मरान कांग्रेस पार्टी कायदीन और अपोजिशन BRS कायदीन के दरमियान बहस व मुबाहिसा हुआ। डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया गया।
डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर आज ग्राम सेक्रेटरी शेखर गौड़ की सदारत में ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में खुसूसी ओहदेदारान एम नरेश के अलावा ऑफिसर टीएच प्रभुदास, मंडल के खुसूसी ओहदेदार प्रमोद, एई प्रशांत के अलावा एई ग्राम सभा के खुसूसी ओहदेदारान इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए अवाम को रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के बारे में वजाहत करते हुए मुस्तहिकीन के नाम को पढ़कर सुनाया और कहा कि इस स्कीमात के लिए अहल होने के बावजूद भी नाम न आने वाले अफराद इनसे मुताल्लिक़ दरख्वास्तें दाखिल करने की ख्वाहिश की। कांग्रेस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में आने के बाद जाती घर का ख्वाब कई सालों के बाद हकीकत में तब्दील होने के बायस मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार किया। दाऊस में मुनक़िद होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तेलंगाना सरकार ने एक नई तारीख रकम की। गुज़िश्ता कभी न होने की तरह एक साथ 1.32 लाख करोड़ सरमायाकारी की हासिल। नए मुआहदों के तहत तेलंगाना के नौजवानों को तकरीबन 46,000 करोड़ मुलाजिमतें हासिल होगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कुल मिलाकर अहम तरीन कंपनियों के साथ मुआहदा किया गया, जिससे रियासत की तश्कील अमल में लाने के 10 सालों में ये सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। ताहम गुज़िश्ता आने वाले सरमायाकारी से भी इस बार आने वाले सरमायाकारी का मुआहदा 3 कीमतों से ज्यादा होने का इम्कान है। रियासत की तरक्की के साथ साथ सरमायाकारी को मकसद बनाते हुए दाऊस जाने वाले सीएम रेवंत रेड्डी की टीम भारी सरमायाकारी को मुतासिर करते हुए कामयाबी हासिल की। दरे असना आज सुबह के अवलीन साथों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सीएम रेवंत रेड्डी वजीर श्रीधर बाबू से अमेज़न वेब सर्विस ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी वाइस प्रेसिडेंट माइकल पुनके से मुलाकात की। इस माह की 26 तारीख से हुकूमत की जानिब से बाविखार तरीके से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात का फील्ड सतह पर जायजा लेने के साथ साथ ग्राम सभा के तहत जमा किए जाने वाले तफसीलात को फौरी तौर पर ऑनलाइन में दर्ज करने के लिए कलेक्टर राजीव कांदी हनुमंतु ने अहदेदारान को अहकामात किए जारी। बोधन मंडल बंडारपल्ली देहात में आज भी आने बरोज़ जुमेरात को इनेकाद अमल में लाए गए प्रजा पालना ग्राम सभा में कलेक्टर राजीव कांदी हनुमंतु ने शिरकत की। वो ग्राम सभा में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले तरीक़ेकार के अलावा सहूलियात की फराहमी का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने इत्मीनान का इजहार किया। रायतु भरोसा इंदिरमा घरों राशन कार्ड इंदिरमा आत्मीय भरोसा के तहत मुस्तहिकीन की शनाख्त करते हुए तैयार किए गए मसवदा फहरिस्त का जायजा लेते हुए ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया है या नहीं के ताल्लुक से दरियाफ्त किया और मुख्तलिफ स्कीमात के लिए ग्राम सभा में नए आने वाले दरख्वास्तों के बारे में तफसीलात हासिल की। इन्होंने कहा कि अवाम से मौसूल की जाने वाली दरख्वास्तों का बारीक बीनी से जायजा लेते हुए वक्तन फ़क्तन जामे तफसीलात ऑनलाइन में अपलोड करने के ताल्लुक से अहकामात जारी किए और मुख्तलिफ मकामात से आने वाले हर एक दरख्वास्त का यकीनी तौर पर जायजा लेते हुए अहल अफराद को फलाही स्कीमात के समराट से मुस्तफिद करवाने के लिए खुसूसी कोशिश करने की ताकीद की। बाद अज़ा कलेक्टर ने बोधन शहर के मुज़फ़्फ़ती इलाके में वाक़ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर बॉयज गुरुकुला स्कूल की अचानक तनफी अमल में लाते हुए स्टोर रूम, किचन, डाइनिंग हॉल, दीगर जरूरी अशिया के मियार के अलावा तुलबा के लिए दोपहर में बनाए गए खाने का जायजा लेते हुए मुंतज़मीन को अहम तजावीज़ दी और मीनू के मुताबिक ग़िज़ा की फराहमी अमल में लाई जा रही है या नहीं का जायजा लिया और ग़िज़ाई अशिया को महफूज रखने के मामले में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे और साफ सुथरा माहौल में खाना बनाने के लिए कोशिश करे और इसके अलावा सब्जियां व ग़िज़ाई अशिया को कहीं पर भी जमीन पर न रखते हुए स्टील के डब्बे में महफूज करे और खुराक को आलूदगी से बचाने के लिए तमाम तरीन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का इजहार किया। शहर के सुभाष नगर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सुभाष हेल्थ जिम में सुभाष चंद्र बोस जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निज़ामाबाद में सुभाष नगर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सुभाष हेल्थ जिम में सुभाष चंद्र बोस जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। साबिक़ा नूडा चेयरमैन चामाकूरा प्रभाकर रेड्डी की सदारत में जयंती तकारीब मुनक़िद की गई। पहले मरहले के तौर पर सुभाष चंद्र बोस के मुजस्सिमे पर तिलक लगाते हुए फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की गई, जिसमें साबिक़ा सोसाइटी सदर एडवोकेट वीरेंद्र रेड्डी, सी राजेंद्र रेड्डी, ए गणेश रेड्डी व दीगर ने खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तानियों पर जुल्म करने वाले अंग्रेजों को इस मुल्क से निकाल बाहर करने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद करने वाले जंगजू ने चलो दहली जय हिंद के नारे कौम को देने वाले हिंदुस्तान के सुपुत्र सुभाष चंद्र बोस होने का इजहार किया और इसके अलावा लायंस क्लब सदर के राजू के ज़ेर तमाम अराकीन ने सुभाष चंद्र बोस को खिराज अक़ीदत पेश किया। యావత్ భారతదేశానికి ముఖ్యంగా మా నిజామాబాద్ ప్రజలకు ముఖ్యంగా మా సుభాష్ ప్రజలందరూ కూడా జయంతి శుభాకాంక్షలు చెప్తా ఉన్నాము। మరి సుభాష్ చంద్రబోస్కు మా సుభాష్ నగర్కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది। మరి 1969లో ఈ సుభాష్ నగర్ లేఅవుట్ చేశారు। అప్పుడు చేసినప్పుడే మరి ఆయన పేరు మీద ఈ లేఅవుటే సుభాష్ నగర్ సుభాష్ పేరు మీద వచ్చింది। అప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు కూడా మేము కూడా ఇక్కడ ఉన్న యూత్ కావచ్చు, పెద్దలు కావచ్చు, సుభాష్ చంద్రబోస్ స్ఫూర్తిని
స్ఫూర్తిని ఉపయోగిస్తూ మేము ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా ఈ యుద్ధ కూడా ఆయన స్ఫూర్తిని ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలని చెప్పి స్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి మా తరఫున మా సభ్యుల తరఫున శుభజయంతి సందర్భంగా ప్రజలందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు. జై హింద్, జై తెలంగాణ. शहर निजामाबाद का तूफानी दौरा करते हुए अरबन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता व मेयर नीतू किरण ने शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद के बड़ा बाजार, नियालकल रोड, गायत्री नगर में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, मेयर नीतू किरण दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुतल्लिका अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शहर निजामाबाद को तरक्की की जानिब गामजन करने के मकसद के तहत खिदमात अंजाम देने का इजहार किया और आने वाले दिनों में शहर निजामाबाद में तमाम तरह के तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील पर पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉरपोरेटर्स दीगर ने शिरकत। సెప్టెంబర్ 2023 టీయూఎఫ్ఐడిసి ఫండ్ 60 కోట్లు, ప్రతి డివిజన్కు ₹1 కోటి రోడ్డు మరియు డ్రైనేజ్ పనుల కోసం శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మార్చి 2023 టీయూఎఫ్ఐడిసి ఫండ్ ద్వారా కొన్ని పనులు జరిగి డివిజన్కు ₹1 కోటి, ఇదే 23 ఎలక్షన్ కన్నా ముందు 4 నెలల ముందు పనులు ఒక 40% డివిజన్లలో పూర్తయినాయి. 20% డివిజన్లలో పార్ట్లీ కంప్లీటెడ్, 40% డివిజన్లలో పూర్తిగా పనులు కాలేదు. నేను ప్రభుత్వాన్ని లెటర్ ద్వారా నేను సీఎం గారికి కోరడమైంది, మార్చి 2023 టీయూఎఫ్ఐడిసి ఫండ్ రిలీజ్ చేయాలి. ఏదైతే ఇది సెప్టెంబర్ది మీరు శాంక్షన్ చేసినారో దానికి కూడా ఎక్కడ ఎక్కడ ఆటంకం కాకుండా ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయాలని నేను నిజామాబాద్ ప్రజల తరఫు నుండి నేను కోరుతా ఉన్నా. అదేవిధంగా సీఎం గారికి 100 కోట్ల నిజామాబాద్ అభివృద్ధి గురించి లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత ఎమ్మెల్యే ఫండ్, సిడిపి ఫండ్ కూడా ఇప్పటివరకు రాలేదు, దాని గురించి కూడా నేను అడగడం జరుగుతోంది. అసెంబ్లీలో కూడా ఇవన్నీ కూడా అంశాలు లేవనెత్తిన నేను. అదేవిధంగా అమృత్ 2 స్కీమ్ కింద అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్, యూజీడీ మరియు వాటర్ వర్క్స్కు 380 కోట్ల శాంక్షన్ అయ్యి టెండరింగ్ కూడా అయింది. గత 3 రోజుల క్రితం ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు జూపల్లి గారి ఆధ్వర్యంలో భూమి పూజ కూడా చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ టీయూఎఫ్ఐడిసి ఫండ్ ఏదైతే ఉందో త్వరలోనే ఒక నెల లోపల అది టెండరింగ్కి వెళ్ళేసి పనులు ప్రారంభమైతే ఉన్నాయని నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నా. మొత్తం మీద కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరుతా ఉన్నా, మీరు ఇప్పుడు గ్రామ సభలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు, మీరు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు జాగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉందని చెప్తా ఉన్నారు, లిస్టింగ్ ఇచ్చిండ్రు. దానికి కొన్ని అనుమానాలు, ప్రజలలో అనుమానాలు లేవనెత్తా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ప్రతి డివిజన్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ చైర్మన్ నుండి కమిటీ సభ్యులు अहल अफराद को हुकूमत की स्कीमात के सम्राट से फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्रजा पालाना ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाने का कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इज़हार। कामारेड्डी के माचारेड्डी मंडल अंसकापुर कोट्टापल्ली देहात में मुनक़िदा प्रजा पालाना ग्राम सभा में कलेक्टर आशीष संगवान ने शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि रायतु भरोसा इंदिरमा आत्मीय भरोसा राशन कार्ड इंदिरमा घरों की स्कीमात के लिए अहले अफराद खानदान इंतखाब करने के लिए ही ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया गया है। वो गुज़िश्ता प्रजा पालाना प्रोग्राम में दरख्वास्त हासिल करने वालों को ही स्कीमात के अमल के लिए ही ग्राम सभा में फहरिस्त पढ़कर सुनाई जाएगी। इस फहरिस्त में कोई एतराज़ हो तो ग्राम सभा में वाकिफ करने का इजहार किया और इससे पहले दरख्वास्त दाखिल करने वाले फिलहाल ग्राम सभा में क़याम अमल में लाए गए काउंटर में दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। इस दरख्वास्तों की मज़ीद जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार, एमपीडीओ, मंडल के खुसूसी अहदेदारान के अलावा पंचायत सेक्रेटरियों के साथ साथ मौजे के अवाम ने शिरकत। बीआरएस पार्टी को कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है, हैदराबाद में सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अनविश रेड्डी ने किया इज़हार। हैदराबाद में वाक़े गांधी भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रियासती सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अनविश रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी के 10 साला दौरे हुक्मरानी पर बरहमी जताई और कहा कि किसानों की खुदकशी पर बीआरएस को बात करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं होने का इल्ज़ाम आयद किया और बताया कि गुज़िश्ता इख्तिदार पर होने के दौरान फसलों को होने वाले नुकसान का तखमीना अदा नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत किसानों को बेक वक्त कर्ज माफ करते तो अब किसानों पर 2600 करोड़ रुपये का बोझ आयद न होने का अनविश रेड्डी ने इजहार किया। शहर के हम्मालवाड़ी में साबिका कॉरपोरेटर
बोटी श्रीनिवास यादव की बरसी के मौके पर खानदान के अफराद ने गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में फ्रूट की तकसीम। शहर निजामाबाद के हम्मालवाड़ी में साबिका कॉरपोरेटर बोटी श्रीनिवास यादव की बरसी के मौके पर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में खानदान के अराकी रेनू यादव, विकी यादव की जानिब से फ्रूट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हमारे वालिद मोहतरम 18 साल पहले ही फौत होना काफी तकलीफदा मरहला है। इनके अज़ाइम के हुसूल के लिए कोशिश करने का इजहार किया। श्री जक्कुला श्रीनिवास यादव गाరు बोटी వారి 18వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో రోగులకు నిరుపేదలకు పండ్ల పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఇలాగే వారి ఆశయాలు ఎన్నో ముందుకు కొనసాగుతామని, ఇలాగే ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక ఈవెంట్ ద్వారా ముందుకు వస్తున్నాం. ఒక్కసారి అన్నదానం కానివ్వండి, పండ్ల పంపిణీ కానివ్వండి, పేదలకి మన ఫ్రూట్స్ అవన్నీ ప్రతి సంవత్సరం చేస్తూ ఉంటాం. ఇలాగే మరెన్నో చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆయన ఆశయాలని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. शहर के अरसापल्ली में वाक़ विवेक स्कूल में अबाकस जिला सतह के मुकाबले जात का किया गया इनेकाद। शहर निजामाबाद के अरसापल्ली में वाक़ विवेक स्कूल में अबाकस जिला सतह के मुकाबले जात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दिन मुकाबले जात में हिस्सा लेने वाले 3rd क्लास के हंसिका और 2nd क्लास के कृतिका ने इनामात हासिल किए, जो कि आज विश्वन एजुकेशन के ज़रिए एहतमाम राजीव गांधी ऑडिटोरियम निजामाबाद में इनामात हासिल किए। डिवीज़न नंबर 55 के वाटर टैंक पर प्रजा पालना वार्ड सभा का इनेकाद। डिवीज़न की अवाम की दरख्वास्त दाखिल करने में कांग्रेस कायद रियाज की जानिब से दी गई खिदमत। बतारीख 23 जनवरी बरोज़ जुमेरात को प्रजा पालना वार्ड सभा का डिवीज़न नंबर 55 में वाक़ वाटर टैंक में इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कांग्रेस कायद रियाज अली ने अवाम को राशन कार्ड और इंदिरा इल्लू स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के लिए मदद फराहम की। इस मौके पर इन्होंने प्रजा पालना प्रोग्राम के इनेकाद पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, निजामाबाद इंचार्ज मोहम्मद अली शब्बीर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इनके हमरा शेख इम्तियाज, सैयद उमर, शेख मोइज, शेख अयूब व दीगर मौजूद थे। तो आज डिवीज़न 55 में प्रजा पालना का वार्ड सभा लगाया गया, जिसमें सो एक ने राशन कार्ड और सो एक ने मुकम्मल इंदिरा इल्लू का प्रोग्राम लगाया, जिसमें सो एक ने 520 कुछ है सो एक ने एप्लीकेशन आए और ऐसे इसीलिए सो एक ने कांग्रेस पार्टी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और हमारे अली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, PCC महेश कुमार गौतम, इनसे शुक्रिया अदा करते हैं। डिवीज़न नंबर 33 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तसीन की क़यादत में वार्ड सभा का कामयाब एहतमाम। इस्तेफादा कुनिंदगान ने नमदीदा होकर किया मोहम्मद मुस्तसीन से इजहार तशक्कुर व इनकी 5 साला खिदमात पर किया खुशी व मसरत का इजहार। आज शहर निजामाबाद के बल्दिया डिवीज़न नंबर 33 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तसीन की क़यादत में वार्ड सभा का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर नौजवानों ने इनकी क़यादत में अवाम को दरख्वास्तें हवाले की। इस वार्ड सभा के एजाज़ी व मकसद से वाकिफ करवाया ताकि वो इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सके और इस मौके पर इस्तेफादा ख़वातीन ने उनका नाम हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा फहरिस्त में पाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तसीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और इनकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा वसीम अहमद, समीर, कैफ अहमद, वसी, आसिफ, खाजा, मुख्तार, शाकिर, जाबिर भाई व दीगर मौजूद थे। बेकाबू स्कूल बस हुई खेतों में दाखिल, कई अफराद जख्मी। महकमे पुलिस की जानिब से किया गया तहकीकात का आगाज। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़े साहिती स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाली बस तुलबा को स्कूल ले जाने के दौरान कमलापुर देहात में बस पलट गई। ड्राइवर गाड़ी ना चलाते हुए हेल्पर को गाड़ी देने की वजह से हादसा पेश आने का बच्चों की जानिब से बताया गया। सड़क के किनारे पर वाक़े दरख्त को बचाने की कोशिश में तेजी के साथ खेतों में जाने के बायस बस पलट गई। इस वक्त इस बस में 25 तुलबा होने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है। हादसे के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद मुकामी अवाम ने फौरी तौर पर तुलबा को बस से बाहर निकाला, तब एक मासूम के हाथ को गहरा जख्म हुआ और मजीद अफराद को मामूली चोटें आईं। इस वक्त मुकामी अवाम लापरवाही करने वाले बस ड्राइवर और हेल्पर पूचन्ना को जदवो खौफ किया। दूसरी तरफ जाए मुकाम पर पहुंचने वाले तुलबा के वालिदैन ने अपने बच्चों को जख्मी हालत में देख कर रो पड़े। हादसे के मुकाम पर पहुंचने वाले पुलिस ने बच्चों के वालिदैन की जानिब से दी गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात करने का CI श्रीनिवास ने इजहार किया। బస్సు ఆ డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల డ్రైవర్ ఎంప కింద కూడా బండి ఇచ్చి నడపడం వల్ల బండి అటు పల్టైంది రోడ్డు పక్కన ఆ రోడ్ దగ్గర కూడా పొలం వాళ్ళు ఎందుకంటే రోడ్ దగ్గర పొలం తీసుకొచ్చారు ఆడ బెటర్ లేకుండా పల్ట్ అయిపోయింది। దాని मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला इंचार्ज व रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की
शहर को आमद के मौके पर डिवीज़न नंबर 31 मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद ज़िला इंचार्ज व रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की शहर को आमद के मौके पर शहर के दाखिले पर डिवीज़न नंबर 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से अरसापल्ली चौराहे पर इनके काफिले का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल अमल में लाया गया। इनकी आमद के लिए डिवीज़न की अवाम की एक बड़ी तादाद इनके रास्ते पर मुंतजर रही थी और इनके काफिले की आमद के साथ ही फूलों की बारिश के साथ इनकी आमद के जश्न का आगाज किया गया और मजलिस की बेलोस कारकर्दगी से खुश होकर इनको तहनीत पेश की। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ कारोबारी हल्के की अवाम ने भी इनकी निज़ामाबाद आमद के मौके पर इनकी शालपोशी व गुलपोशी अंजाम देते हुए मसरत का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद मुस्तसीन के अलावा अलीम पिया रियल एस्टेट, सोहेल चाउश, जाविद व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद इंचार्ज व रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की ज़िले को आमद मुख्तलिफ मंडल्स में सालारे मिल्लत स्टडी मटेरियल की गई तकसीम। इनके हाथों BRS के कई कायदीन ने की मजलिस में शमूलियत हासिल। दाउस में मुनक़िद होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तेलंगाना हुकूमत ने तारीख रकम की। गुज़िश्ता कभी न होने की तरह इस बार 1.32 लाख करोड़ सरमायाकारी को तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने किया हासिल। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के सुभाष हेल्थ जिम में मुनक़िदा जयंती तकारीब में साबिक़ा नूडा चेयरमैन जामाकूरा प्रभाकर रेड्डी ने की शिरकत। वो मारूफ सीनियर एडवोकेट P सदानंद रेड्डी अब नहीं रहे। 50 सालों से ज़ायद कानूनी खदमात अंजाम देने वाले सदानंद रेड्डी का देहांत होना काफ़ी तकलीफदा मरहला होने का इजहार किया। बार एसोसिएशन अराकीन तिब्बी अमला रेड्डी संगम अराकीन ने पेश की गुलाए अक़ीदत। निज़ामाबाद में तूफानी दौरा करते हुए अरबन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता व मेयर नीतू किरण शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। प्रजा पालना ग्राम सभा की तफसीलात को फिल4 ऑनलाइन में दर्ज करे। बोधन मंडल में वाक़े बंडारपल्ली देहात में ग्राम सभा के तरीक़ेकार का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुशाहिदा करते हुए किया इत्मीनान का इजहार। बेकाबू बस हुई खेतों में दाखिल, कई अफराद जख्मी। महकमे पुलिस की जानिब से किया गया तहकीकात का आगाज। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।